Hello, dear students. I hope you all are well and I wish you all are healthy again. Today we are going to learn our next and new poem, and that poem is So Sweet, Little and More Interesting Poem. Okay, then see which is our poem. Our poem name is My Playmate. My Playmate. My Playmate का अर्थ होता है मेरा दोस्त या मेरा जोड़ीदार, सखा जिसे हम कहते हैं, जिसके साथ हम खेलते हैं, उस दोस्त को My Playmate कहते हैं. Okay. See here now. Playmate, a friend to play with. अर्थात हम जिसके साथ खेलते हैं उस अपने दोस्त को हम प्लेमेट कहते हैं. ओके, देन द पोएम माई प्लेमेट इज written by Mary I. Osborne. The poetess of this poem is Mary I. Osborne. इस पोएटेस ने यह कविता लिखी है. एंड नाउ फॉर द थर्ड स्टैंडर्ड इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, द पोएम माई प्लेमेट we are going to study. Students, see, first of all we will see the image of the poetess Mary I. Osborne. She looks here. She is a lady, Mary Osborne, and she write this poem. And this is the one more picture to related with the Osborne projects. You can see here how it is. And now we will discuss about the words from this poem. And the words are playmate. First word is playmate. Playmate means Playmate. Playmate means a friend to play with. दोस्त, बचपन का दोस्त या सखा जोड़ीदार, उसे हम प्लेमेट कहते हैं. Puddle, Puddle. Puddle means a small pool of water formed on the ground after rain, जिसे हम हिंदी में तालाब कहते हैं. Reflection, a picture that you see in a mirror or on water. प्रतिबिंब या फिर परछाई उसे कहते हैं. A sorry sight, a sad thing to see. A sorry sight means देखने के लिए कुछ सैड लगता हो, दुखद पूर्ण लगता हो, ऐसा क्षमा दृष्टि वाला सीन. Seems, SEEMS. Seems means appears or looks. लगना, फील होना, जिसे हम कहते हैं. Trade, TREAD. Trade means put your photo. Sorry, I will tell you the meaning of trade. Trade means walk, 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 comma, put your foot means चलना, चाल या गति, जिसे हम कहते हैं. हम अपने पाँव रखते हुए चलने की स्पीड को ट्रेड कहते हैं. Upside down means turn so that the part that is usually at the top is now at the bottom. अर्थात जिसे हम उल्टा कहते हैं. Often means commonly means हिंदी में उसे अक्सर या हमेशा कहते हैं. So
these are the words we have studied here from this poem, and now we will go ahead to see our poem My Playmate. Okay, now we will study or we will learn this poem line by line with the explanation. In this poem, students, in this poem, the poetess has described the shadow of a person to be his allied mate, to be his ultimate mate shadow of a person, ultimate mate of friend. Okay, she described again a boy reflection in a shadow, in a shadow to water, and she described a boy who calls with his reflection or shadow in a puddle. Puddle means एक तालाब है, अर्थात कवयित्री ने माय प्लेमेट इस कविता में एक आप ही के एज के जैसा स्टूडेंट्स है, बॉय है, एंड उस बॉय का जो कहना है या फिर उसने जो भी अपनी तालाब में खड़े होने के बाद जो शैडो रिफ्लेक्शन दिखता है, उस शैडो के साथ जो भी फीलिंग शेयर की है, बातें की है, उन सभी बातों का चित्रण करने का प्रयास इस कविता में कवयित्री ने किया है। अर्थात जब वह बॉय रास्ते पे क्रिएट हुए तालाब पे, पड़ल पे चलता है, रेनी सीजन में रेन गिरने के बाद जब जमीन पे कुछ तालाब कलेक्शन पानी का हुआ है तालाब में, तो उस तालाब में जब खड़ा हो जाता है तब उसकी शैडो, उसी की परछाई उसे उस पानी में दिखाई देती है, एंड उसी शैडो के साथ बात करते हुए उसी शैडो को, उसी रिफ्लेक्शन को वह अपना प्लेमेट समझता है, फ्रेंड समझता है, दोस्त समझता है, एंड उस दोस्त के साथ किस तरह से वह बर्ताव कर रहा है एंड किस तरह से उसको दुख हो रहा है, इसके लिए वह क्षमा भी चाहता है एंड वह उससे बात भी करना चाहता है, बट वह उससे बात करते हुए नहीं पाता है। इन सभी चीज़ों को व्यक्त करते हुए इस बॉय का चित्रण बॉय के द्वारा कवयित्री ने इस कविता में अपनी इमेज को रिखाटने का कार्य किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड पोएम वन बाय वन। Students, you see here the image of the poetess, that is Mary Osborne, and she was born in 16 December 1940 in Darlington in the United Kingdom. Okay, let's go ahead. And now we will study poem, the explanation line by line. I often wonder how it is that on a rainy day, I wonder how it is that on a rainy day, a little boy just like myself comes out with me to play. What he says in the first stanza, in this poem there are 5 stanzas, and in each stanza there are 4 lines. Okay, then see first stanza, what she said. I often wonder how it is that on a rainy day, a little boy just like myself
कम्स आउट विथ मी टू प्ले। वह कह रहा है, वह लड़का जो, कि मैं हमेशा से ही चकित हो जाता हूँ कि कैसे क्या हो जाता है यह बब्बा। दैट ऑन रेनी डे, रेनी डेज में जब बारिश हो जाती है, तो बारिश के दिनों में जब मैं पानी में घूमने चला जाता हूँ, एक पड़ल में खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे जैसा ही दिखने में सेम एक लिटिल बॉय मुझसे था, कम्स आउट विथ मी टू प्ले, मेरे साथ वही भी खेलने आता है ना। उसी के बारे में यह आश्चर्यचकित होते हुए वह बॉय कह रहा है कि जब मैं रेनी डे में बाहर खेलने जाता हूँ, तो मेरे जैसा एक सेम छोटा लड़का मेरे साथ खेलने आता है। Then see ahead what happened. And we step in all the puddles when walking through the town. And we step in all the puddles when walking through the town. But though I stand right up, way up, he is always upside down. हम दोनों तो खेलने चले जाते हैं, वह मेरे साथ आता है खेलने, जो दोस्त है मेरा। बट जब हम उस पड़ल में खड़े हो जाते हैं, मतलब बारिश हो जाने के बाद रास्ते पर जमीन पे एक तालाब निर्माण हो जाता है, एंड उस तालाब में जब यह लड़का खड़ा हो जाता है, तो उसी के साथ वह भी खड़ा हो जाता है। कौन? यहाँ पे उस लड़के का दोस्त। ओके, तो वह भी पानी में खड़ा हुआ दिखाई देता है उस तालाब में। बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप, बट वह सोचता है कि जब मैं सीधी तरह से या अच्छी तरह से खड़ा हो जाता हूँ, सही तरीके से खड़ा तो मैं रहता हूँ, बट फिर भी क्या हो जाता है कि ही ऑलवेज अपसाइड डाउन। मैं तो स्ट्रेट लेग सही तरीके से खड़ा होता हूँ, बट मुझे वह लगता है कि हमेशा उल्टा ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है इस लड़के को? दूसरा दोस्त तो पानी में खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखता है? तो उल्टा दिखता है। क्यों दिखता है उल्टा? थिंक ओवर इट। ओके, अगर समझो आपके साथ कोई दोस्त नहीं बल्कि आपकी परछाई ही अपने पानी में दिख रही है, तो क्या वह आपके जैसे सेम सही तरीके से खड़ी हो पाएगी? नो। ओके, तो इस तालाब में उस बॉय की शैडो है, परछाई है, जो कि आप इस कविता की पिक्चर में देख सकते हो। एंड वह कैसे भला शैडो इसी के जैसे खड़ी हो पाएगी? शैडो तो पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, वह फ्लैट ही दिखाई देगा, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। आप भी एक बार ट्राई कर लो स्टूडेंट्स, अगर किसी तालाब में छोटे से ग्राउंड पे चले जाके या पानी के साइड में खड़े होके भी अगर आप देखते हो, तो पानी में आपको आपकी शैडो दिखाई देगी, एंड वह पानी में फ्लैट पानी के बराबर दिखाई देगी, ना कि आपके जैसी खड़ी। ओके, तो इस प्रकार से इस रिफ्लेक्शन के साथ, अपनी ही परछाई के साथ वह बॉय बातें कर रहा है, एंड उसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि देखो आगे क्या कहता है। I have to tread upon his feet, which is sorry sight. मैं चलता हूँ कब, कहाँ, कैसे? मैं मेरे पैर कहाँ रखता हूँ? तो उसके पैरों पे। ओके, मेरे कदम कहाँ पर रहते हैं? उसके कदमों पे। एंड विच इज सॉरी साइट, एंड जो मुझे कैसे लगता है कि बहुत दुखद बात लगती है कि बाबा ये ठीक नहीं है ना, मैं उसके पैरों पे पैर रखे चलूँ, इट इज़ नॉट गुड, ऐसा उस बॉय को लगता है। विथ माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, विथ माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, माई राइट फुट ऑन हिज राइट, माई राइट फुट ऑन हिज राइट। तो चलता हूँ तो कैसे चलता है वह लड़का? तो मेरे लेफ्ट फुट के साथ उसके लेफ्ट फुट के साथ ही मैं मेरा पैर उठाता हूँ, अर्थात जब यह लेफ्ट फुट उठाता है तो उसी के लेफ्ट फुट पे उसका पैर बैठ जाता है। एंड माई राइट फुट ऑन हिज राइट, मतलब मेरा राइट फुट उसके राइट फुट पे करेक्ट बैठता है, ऐसा वह कहता है। मतलब बाएं पाँव पे बायां पाँव, एंड राइट फुट ऑन हिज राइट, मतलब उसके सही तरीके वाले फुट पे मेरा राइट दायां पाँव करेक्ट बैठ जाता है। ऐसे वह पानी में छाँव में देखते हुए चलते हुए अपनी मन की बातें बोल रहा है। ओके,
Then see again what happened in this poem. See, you can see this boy in that puddle. He stood in that puddle. Okay, वह जो लड़का दिख रहा है आपको इस पडल में खड़ा हुआ है, तो पडल में किस प्रकार से उसकी परछाई गिरी हुई है, उसके पैरों से उसकी उस लड़के के भी पैर, परछाई के भी पैर शुरू हो जाते हैं, एंड दूसरी तरफ उसका हेड है। तो जब वह चलता है तो इसके पैर उसी के पैर पे आते हैं, एंड इस बात का दुख भी अपने बॉय को लगता है कि बाबा वह दोस्त के पैरों पे पैर रखे चल रहा है। I really wish he had talked to me. He seems so very kind. वह बॉय कह रहा है कि मुझे सच में बहुत इच्छा है कि उसके साथ बोलूं या वह मुझसे बात करे, बट ही सीम्स सो वेरी काइंड। बट फिर वह सोचता है कि वह बहुत ही दयालु एंड लवली काइंड का बॉय है। फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम he does the same I find. For when I look and smile at him, he does the same I find. जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ एंड स्माइल करता हूँ उसे, तो वह भी मुझे स्माइल करता है ना। सी हियर व्हाट इज अ मैजिक स्टूडेंट्स। जब यह बॉय खड़ा हुआ पडल में उस परछाई की तरफ, मतलब शैडो की तरफ, उसके दोस्त की तरफ देखते हुए हंसता है, देखता है, तो वह भी इसे देखता है एंड उसे स्माइल कर देता है फिर से रिटर्न। ही डज द सेम फाइंड, मतलब मुझे यह दिखाई दिया कि वह मेरे जैसा ही सेम करने लगता है। बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, सो श्योरली ही मस्ट बी इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड जस्ट अपोजिट टू मी। बट मेरे जैसा सेम तो वह कर देता है, बट क्या मेरे जैसा वह बोल पाता है? नो। अर्थात यह बॉय कहने लगा है कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरे जैसा वह कभी बोलते हुए मुझे नहीं दिखाई दिया है, मैंने उसे बोलते हुए कभी देखा नहीं। इसका अर्थ यह है कि सो श्योरली ही मस्ट बी, वह ऐसा ही होगा, यकीनन वह ऐसा कुछ होगा, इन सम स्ट्रेंज, एक अजनबी, एक अनोखा, असामान्य बॉय होगा कि जो लैंड द अदर साइड, जो कि जमीन पे दूसरे साइड पे वह एक अनोखा बॉय है, असामान्य बॉय है, जो कि जस्ट अपोजिट टू मी, जस्ट मेरे अपोजिट में दिखाई देता है, जस्ट मेरे विरुद्ध दिशा में मुझे दिखाई देता है। एंड यह जो रिफ्लेक्शन वाली, शैडो वाली बात है, वह लास्ट पॉइंट में उस स्टूडेंट्स को, उस बॉय को समझ में आती है कि बाबा वह कोई मेरा जीता जागता दोस्त नहीं, बल्कि शैडो है, रिफ्लेक्शन है, पानी में प्रतिबिंबित होने वाला मेरी ही परछाई है। इस प्रकार से लास्टली उस स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि वह मेरी तरह से एक्शन तो करता है, मेरे साथ चलता है, बट ही कांट टॉक लाइक मी। एंड सो लास्टली he found that is a shadow of his, or reflection in water of his. Okay, such a way we have completed here our poem, which is so sweet and interesting poem. Okay students, by these 5 stanzas I have described here explanation of all poem, and I hope you understood it well. So we have to stop here, and now we will move towards the next point. Look, this is the last one picture of our poem from the textbook, and you can see in this picture that boy is stand and the shadow is in the puddle. Such a way shadow इस प्रकार से रहती है, एंड इसी रिफ्लेक्शन से बात करते हुए इस कविता में यह लड़का अपने को दिखाई देता है। सी दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ पडल्स फ्रॉम द पडल्स। जैसे कि रेनी सीजन में आप स्टूडेंट्स अगर बाहर चले जाते हैं तो इस प्रकार से रास्ते में
जमे हुए पानी में, खड़े हुए पानी में आप अगर खेलते हैं तो आपको अपनी परछाई, आपके ही रिफ्लेक्शन, शैडो आपको पानी में दिखाई देती है। इस प्रकार से इस पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि पानी में किस प्रकार से आपकी परछाई दिखाई देती है। ओके, जस्ट गो अहेड। In the last period, we have studied some grammar points, and in that parts of sentence वाक्य के भाग हमने पढ़े हैं। and उस वाक्य में which is the subject and which part is the predicate from the sentence we have studied, and today we are going to study the next point from this grammar part of sentence. And in the part or point of these parts of sentences, today we are going to take question 3rd on the page number 7. Please take your book and open it on the page number 7 in the book of grammar, grade 3. On the page number 7, question 3, underline the predicates. What is said? Underline the predicates. Predicates को underline करना है हमें students. Predicates means वह पार्ट, पूरा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है, उस वाक्य के भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन इज दैट ए द बॉयज वेर हंग्री. व्हाट इज द सेंटेंस? द बॉयज वेर हंग्री. एंड इन दिस सेंटेंस वी फाइंड द प्रेडिकेट्स. हमें प्रेडिकेट ढूंढना है, तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट है वेर हंग्री. वेर हंग्री अर्थात यहाँ जो द बॉय, यह क्या है? सब्जेक्ट है. यह पर्सन का नेम है ना, किसी व्यक्ति का, बॉय का, थिंग का अगर नेम है तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं. एंड उस आधार पर द बॉयज यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. एंड वेर हंग्री यह उस लड़कों के बारे में बता देने वाली जानकारी है, जो कि वहाँ पर लड़के बहुत हंग्री थे. इस प्रकार से यह वाक्य का भाग जो है प्रेडिकेट, हमें जानकारी देता है कि वह बॉयज हंग्री थे. तो इस वाक्य को, इस हिस्से को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं. देन यू कैन अंडरलाइन वेर हंग्री. ओके, नेक्स्ट B example. I watch movies on the TV. I watch movies on the TV. इस सेंटेंस में प्रेडिकेट है वॉच मूवीज ऑन द टीवी. पूरा यह भाग जो है प्रेडिकेट है वॉच मूवीज ऑन द टीवी. You underline just it. I, it is a subject, but first here you underline only predicate part of sentence. C. Sonia went to the zoo yesterday. Sonia went to the zoo yesterday. Sonia, it is a subject, and remaining part of this sentence, that is predicate. It means went to the zoo yesterday. These all words are in the predicates. Okay, so underline from went to the zoo yesterday. And D. Pandit Jashraj is a well-known singer. Is a well-known singer. It is a predicate. Kashmir is a beautiful place. Is a beautiful place. It is a predicate. Okay. The next, fourth question. Circle the subject and underline the predicate. Now students, you can identify which is the part of subject, and from this sentence which is the part of predicate. Then you should underline and circle. See here. First of all, you circle the subject, and after that remaining part of sentence, that is predicate, you should underline it. Okay. So we will take us first example here.
first sentence is that those white swans look very beautiful. Those white swans, it is a subject, and look very beautiful, it is a predicate. आपको स्टूडेंट्स और एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यह दोज वाइट स्वैंस, यह जो 3 वर्ड्स का ग्रुप है, यह कैसे सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, 2 या 3 वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है, एंड प्रेडिकेट भी उसी तरह से हो सकता है, चाहे प्रेडिकेट एक वर्ड का हो या 2-3 वर्ड का ग्रुप हो, यह पॉसिबल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोज वाइट स्वैंस, यह जो है सब्जेक्ट है, उसको सर्कल करना है, एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल, इट इज अ प्रेडिकेट, अंडरलाइन इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बर्ड लेड एन एग। द बर्ड, it is a subject, circle it, and laid an egg, it is a predicate, underline it. Okay, you can solve next 3 examples from this question. And question 5th, fill in the blanks with suitable subjects. तो आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल के लिए पिक्चर दिया हुआ है, एंड उस पिक्चर को वर्ड इमेजिन करके उस पिक्चर को देख के वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में आता है, अर्थात एक सुटेबल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ वह परफेक्ट बैठ सकता है। यह पिक्चर देख के आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। डैश डैश फ्रॉम बेंगलुरु अराइव्ड लेट। तो इस सेंटेंस के सामने पिक्चर कौन सा है? ट्रेन का है ना। You can find this picture. What is the name of that picture? Train. Then you can write here a train. It is a subject. What you should write? A train. A train from Bengaluru arrived late. This is the answer of this first sentence. Second example B. Dash are bright red in color. Dash are ब्राइट रेड इन कलर। यहाँ उसी के सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, वह किसका पिक्चर है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉबेरीज का। ओके, देर आर 2 स्ट्रॉबेरीज। सो अगर यहाँ पे 2 है तो यस लगेगा स्ट्रॉबेरी को। ओके, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आर, अगर यह 2 है, प्लूरल है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आर लगता है। टू बी का हेल्पिंग वर्ब है वह। स्ट्रॉबेरीज आर ब्राइट रेड इन कलर। ओके, ये हुआ सेकंड बी का आंसर। थर्ड सी है, कांगारू आर फाउंड मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया। इस सेंटेंस के सामने पिक्चर किसका है? तो कांगारू का है। तो यह कांगारू आर फाउंड मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया। डी, postman delivered the letter. POSTMAN स्पेलिंग। कांगारू का स्पेलिंग है KANGARU। स्ट्रॉबेरी स्पेलिंग STRAWBERRIES। ट्रेन का तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ई, डैश आर गुड स्विमर्स। कौन है अच्छे स्विमर्स? पेंगुइन। ओके, यहाँ भी यस लगता है, मतलब आर दिया हुआ है। पिक्चर तो एक ही है, बट सॉरी यस नहीं लगता, क्यों? तो ये ग्रुप का कॉमन नाउन है। पेंगुइन आर गुड स्विमर्स। स्पेलिंग ऑफ पेंगुइन इज PENGUIN। पेंगुइन are good swimmers. And the last example of that is elephant has sharp and long tusk. Elephant has sharp and long tusk. इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कर दिए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सब्जेक्ट्स विथ सुटेबल प्रेडिकेट्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं एंड हमें सुटेबल प्रेडिकेट ऐड करना है, लिखना है सेंटेंसेस में, उसको लिखकर सेंटेंस पूरा करना है। तो सब्जेक्ट है फर्स्ट एग्जांपल में द कैट।
तो द कैट, यह जो बिल्ली है सामने क्या कर सकती है, इसको हम खुद आइडिया करके प्रेडिकेट को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है आपको, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, इज ड्रिंकिंग मिल्क, यह आपको सामने लिखना है, वह इस वाक्य का प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड बी एग्जाम्पल, प्लांट्स सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके सामने हमें प्रेडिकेट फिल करना है। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रेडिकेट लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स आगे वाले एग्जाम्पल्स छुड़ाना है, सब्जेक्ट को लेकर प्रेडिकेट कंप्लीट करना है एंड वाक्य को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फ्रेम सेंटेंसेस विथ सुटेबल सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। इस पिक्चर को देख के आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों भी लिखना है। ओके, जैसे कि पिक्चर देख के आपको कैसे सूझता है, देखो पहला एग्जांपल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल और द बॉयज वेर प्लेइंग फुटबॉल, दोनों भी प्रकार से यह वाक्य हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो अदर 3 एग्जाम्पल्स है वही आपको पिक्चर को देख के सॉल्व करना है। ओके, an activity also we have to complete. Such a way we have completed here our grammar portion. जैसे कि हमने इस पेज में से 8 नंबर पेज से अभी बता दिया है कि 7 क्वेश्चन किस प्रकार से पिक्चर को देख के सेंटेंस कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों लिख के आप ही को करना है। हमने पहला पिक्चर बता दिया है कि द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल और द बॉयज़ वेयर प्लेइंग फुटबॉल, दोनों प्रकार से हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं। दूसरा है अ मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना, एक मनुष्य आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं कि अ मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। इस प्रकार से आप अदर एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज छुड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ओके बॉय, वी हैव completed here our poem and some part of grammar. So we have stopped here and we will take a break in this period.